We are going shortcut steps. Okay, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 1. You have done this one question homework. Okay, now ready? We'll go for the sum question for differential equation of higher order. This is उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए थर्ड यूनिट है. This is unit number 3. The name of the unit is differential equation of higher order. Higher order. So this is the question number 1. So let us go for in detail. अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे मीन वाइल मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ क्या क्या इसमें करना रहता, क्योंकि क्वेश्चन ही ले लेंगे इमीडिएटली. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व. क्वेश्चन है दिस इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब -6 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर +11 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, -6y is equal to 0. This question is given in standard form. y triple dash या फिर d cube y by dx cube means it is a standard form. So in the first step we have to write this question, this problem into symbolic form. Symbolic form or operator form. The sometime what happened, question will be already given in symbolic form. Symbolic form is, tell me how to write symbolic form. Symbolic form means wherever d by dx is there, instead of taking this d by dx every time, we use this shortcut capital D. And now if you replace here, and now look at in these all terms we have y also, that we have to take common. D cube -6d square plus 11d minus 6 of y is equal to 0. This is a symbolic form. Sometimes question will be given from here directly, symbolic form. Now after that we have to write this auxiliary equation. The auxiliary equation is the way of writing auxiliary equation. Wherever capital D is there, that we have to write as small m, and we neglect this y, and right side में भी जो भी वैल्यू रहेंगी ना उसको भी नेग्लेक्ट करके आपको auxiliary equation लिखना रहेंगे. So this is becomes m cube minus 6m square plus 11m minus 6 is equal to 0. Then if the power is 3, now we can use synthetic division method. It means we should get the values of m, some values randomly. कैसे start करेंगे? Starting with 1 -1 2 -2 3 -3. Out of this 6 value, one value will definitely satisfy this equation. So maximum cases में if you start your work like this, m is equal to 1, what happened? Look at the rough column. 1 plus 11 is 12, minus 6 is minus 12, means definitely m is equal to 1 will be satisfying this equation. It means that m is equal to 1 will be the solution of this equation. So then if you are agree with me, then we can start doing this one by synthetic division. That we put here is 1, and इसके coefficients आपको यहाँ पर लिखना है 1 -6 11 -6. Now first value will be 0. Now adding 1 plus 0 is 1, 1 1s are 1. Once again adding -5. This is -5. This is 6. This is 6.
0. Last term will become 0. Now what we are getting here now, these are the coefficient of second degree. M square minus 5m Minus 5m plus 6 is plus equal to 6. 0. This is the second degree equation. You can use the calculator or you can do the manually, but my suggestion not to use the calculator, because if you are doing engineering, if you still don't know how to take the factors, means there is no use. So better we have to do it manually to get their factors. So what are the possible M square factors? minus M minus 6M. No, No. it's what, minus 3 minus 2 minus Okay. minus 3m Mhm. minus 2m plus 6 is equal to 0. Plus 6. Look at that, factors कैसे सर्च करते हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. 6m square के possible factors to get minus 5m also, so minus 2m Minus 3. minus Here. 3m. You can Minus also 2. take 5 plus 1 6, but by 5 plus 1 6 ये इसको satisfy नहीं करता. We multiply to get this one. If you add, you will get this middle term. That is the perfect factors. M common, M common. M m minus minus 3. 3 minus 2 common, Minus 2 common. m minus 3 is equal to 0. equals to 0. M M minus is equals 3 will to be 2 repeated, common. and then because we are doing the first problem, so I want to go in detail. The values of m are finally 1 3 comma 2. 2 3. 1 भी है ना जी यहाँ पर? Yes, sir. So 3 roots we are getting, and all the 3 roots are different. Okay, now एक टेबल बनाता हूँ मैं. Look at this. यहाँ पर एक टेबल बनाने का तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन एक यहाँ पे एक रूल लिखते जाएंगे साथ में जो जो अपन कर रहे हैं. So what we'll do it here is, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, और दूसरा है सॉल्यूशन है, इसको रूट्स बोलेंगे, और सॉल्यूशन वहां पर यहाँ पर लिखेंगे रूट्स, और यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. केस 1, पहला केस, we are getting 2, not 2, 3 different roots. Suppose first root is m1, second root is m2, third root is m3, and all 3 roots are different here. So the way of writing this is called complementary function. The way of writing is c1 e power m1x plus c2 e power m2x Plus C3 e power m3x. M3x. So here also we should write in this way only. This is called complementary function. c1 e power 1x is x only, plus c2 e C2 power e power 2x 2x. plus c3 e power 3x. 3x. ये हो गया आपका solution. The problem will be completed here. Okay. अब एक दूसरा केस अपन देखेंगे, where maybe the roots are not equal, or maybe the roots you will not get. ठीक है ना, दोनों भी possibilities हो सकता. रूट्स या तो डिफरेंट आ सकते हैं या तो रूट्स आते ही नहीं. इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेंगे. लुक एट द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. सॉल्व d square plus 9 into y is equal to 0. You did this problem also, right? So then you can see already the question will be given in a symbolic form. We should write the auxiliary equation directly right now. The auxiliary equation is, can you tell me what is that? M square plus 9 equals to 0. Exactly, m square plus 9 is equal to 0. It means we can see m square is equal to plus 9 means Plus plus 9 here, minus 9.
then m square is equal to M minus equal 9 can be to written as Plus or minus 1. 3i whole square. first of all 3 square 9, Okay. i square वैल्यू इज -1. अब करेंगे वो जो आप बोल रहे हैं, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाता, प्लस माइनस 3i एंड 0 वी आर एडिंग. ठीक है. Yes, as alpha. यस. अल्फा प्लस आर मीन Plus I माइनस beta. i बीटा फॉर्म मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 3. अब आप केस देखिए वो क्या होता. दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी, suppose we are not getting the roots, we are getting the roots of these. This is called complex roots, alpha plus minus beta. Then the way of writing the complementary function is e power alpha x c1 cos beta x beta x plus plus c2 sin sin beta x. beta x. तो इसका आप कैसा लिखेंगे आंसर? yc is equal to, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, e power alpha C. x, alpha value 0, e power 0 is 1, Hmm. c1 cos beta value is 3 and c2 sin beta value is 3 again. So like that we can get the solution. This problem will be completed here only. ठीक है. Any doubt? No, sir. चलिए अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें फिर से कॉम्प्लेक्स रूट तो नहीं बोलता हूँ मैं, बल्कि एक ऐसा लेंगे क्वेश्चन अपन जिसमें रिपीटेड रूट्स आ सकते हैं. ठीक है. चलिए ये क्वेश्चन ले लेंगे अपन और गेट द रिपीटेड रूट्स हियर. नेक्स्ट पेज आई टेक. Okay. Look at this. The question is, this is question number 3. Solve d square plus 6d plus 9 into y is equal to 0. Right? है आपके पास? Yes. Look at this one, how we are getting the solution. Solution, ये भी question unfortunately आपके पास directly symbolic form में है. So we start writing the auxiliary equation. M square plus 6M plus 9 equals to 0. Yes. M square plus 6m plus 9 equal to 0. We neglect y. Be careful. Now you can see it is a expansion of m plus 3 whole square equal to 0. Yes, yes. Even though m plus 3 whole square can be written as m plus 3 into M minus 3. no repeated square को अपन, So, हाँ. then we are getting the values of m are again minus 3 Minus 3 comma comma minus minus 3. 3. And the way of writing complementary function is equal to, look at this, ये पेज में यहाँ पर लिख देंगे पहले अपन. नेक्स्ट ये कौन सा वाला केस है? थर्ड केस है. Same, we are getting the roots are same same. roots. Yes, m1 is equal to m2. yc is equal to c1 plus c2 of x into e power, कोई भी लिख सकते हैं, m1x या फिर m2x, where the roots are same. यहाँ कैसा लिखेंगे? c1 plus c2 of x into e to the power of minus 3. Minus 3x. हो गया, इसका सोल्यूशन खत्म हो गया. अब ये हो गया आपका जनरली क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करने के क्वेश्चन थे. अब अपन मेथड से स्टार्ट करेंगे. टोटली अपने पास देखिए सिलेबस में 5 मेथड के बारे में पढ़ना है.
ठीक है, वो 5 मेथड्स 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे। तो सर इफ सॉल्व बोले तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक लाके रोक देना नहीं, प्रॉब्लम। राइट साइड में भी अगर कुछ वैल्यू है तो सॉल्व का मतलब वाई सी प्लस वाई पी, जनरल सोल्यूशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिखने को बोलते हैं। हाँ, इफ अपने पास आरएचएस में कोई वैल्यू रही तो फिर वाई तक नीचे तक लेके जाना। इफ जी सिर्फ सॉल्व बोले तो वाई से फाइंड करना। जी हाँ, जी। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन अपन हम्म कर रहे हैं यहाँ पर अभी, जिसमें राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज है और उसका सोल्यूशन कैसा करना है। हम्म जी। इसकी इसकी हेडिंग रहेंगी मेथड 1। ओके। टोटल 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस है, फिर वेरिएशन ऑफ हम्म पैरामीटर्स है, फिर उसके बाद लेजेंडर कॉचीज यूलर इक्वेशन है, उसके बाद आपका सिलेबस यूनिट 3 का खत्म। क्वेश्चन कैसा आता देखिए एग्जाम में सॉल्व। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लेके आपको डराने वाला केस नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल वे में जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e टू द पावर ऑफ माइनस। टू डिड दिस वन, चलिए देखेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए अब जरा मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे, तीन दो जो भी क्वेश्चंस अपन करे, राइट साइड में जीरो था देखिए। यस यस, यहाँ पर 2e⁻⁻⁻⁻। राइट साइड में अगर ई पावर के टर्म जो भी आने दो, ई पावर एक्स, ई पावर 2x माइनस एक्स, जो भी, वो मेथड 1 में आता हो। ठीक है, मेथड 1 को सॉल्व कैसा करते हैं आज अपन देखें, ठीक है ना। Okay, sir. जी। Yes. तो सोल्यूशन, अब इसमें भी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन पक्का लिखना रहेगा। हर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि वाई सी वैल्यू, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसा था बोलिए, एम एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4m। M square 4m plus प्लस 4m plus प्लस। 13 is equals to 0. बट नाउ इफ यू सी वी आर नॉट गेटिंग द फैक्टर्स। फैक्टर्स आ सकते हैं क्या देखिए इसके, नहीं। वी आर नॉट गेटिंग द फैक्टर्स। No. So this one will be comparing with am square plus ओके। bm bm plus प्लस c। c। E क्वाड्रेटिक फॉर्म में C c से मतलब इन टर्म्स ऑफ m क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a वैल्यू इज 1, b इज b वैल्यू इक्वल इज टू 4, 4, c is equal to 30 c is equals to 13. and use this Now formula। minus B Yes, प्लस और माइनस plus or plus or minus, minus under root हाँ, b B square b स्क्वायर square माइनस minus 4ac 4AC by 2। बाई divided 2a। by 2A. इसमें ये वैल्यूज को रखेंगे, जी। we put the values, minus b means minus 4, plus or minus under root b square means minus, no, not minus, it's a plus 4. 4 square is 16 minus 4ac. 4 into 1 into 13, 52 by 2 ones are 2. M is equals to, it's minus 4 plus minus 16 minus 52. 36, no, it is minus 36. Minus 36 divided by 2. Yes, minus 36. This is minus 4 plus minus, you can see 36 का जो रूट आता वो 6 आता, और ये यस माइनस को आप क्या लिखना है, ये आई। माइनस की प्लेस पे आई लिख देना, और 36 का रूट आता 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करें, यानी कि इफ यू टेक 2 कॉमन, वी गेट -2 प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाई 2। एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड दिख रहा, नेक्स्ट बाजू में लिखता हूँ, इधर बाजू में।
यहाँ पे लिख, this is m is equals to, if you take 2 common, don't take -2, okay, -2 plus minus 3i by 2. This two must be cancelled. We are getting our roots are complex. -2 plus r minus 3i. मतलब कौन से फॉर्म में है रूट्स अपने? यस, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म में है. Yes. Yes, no problem. So then Complementary yc is equal to function. e power alpha E x power alpha x into c1 cos cos beta beta x x plus plus C2 sin beta x. c2 sin beta x. Then this yc is equal to e power alpha value is -2x, okay, Minus 2x c1 cos C1 cos beta is 3 3x plus c2 plus sin C2 sin beta 3x. is again 3x. But this problem is not completed here. Why? Because राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप. तो ये जो y है इसका सोल्यूशन अपन लिख रहे हैं. तो इसका जो सोल्यूशन होता है ये y का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल रहता है इसका. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप यहाँ पर लिखे y c बोल के, अब y p लिखिए, y p, यही y का और एक सोल्यूशन. ये मल्टीपल टर्म्स को वो साइड भिजा देंगे, तो ये 2 इधर कांस्टेंट बाहर आ जाता, 1 by मल्टीपल टर्म्स कम्स टू द डिनोमिनेटर, d square plus 4d plus 13 into e to the power of -x. राइट. अब देखिए रूल, देखिए रूल क्या बोल रहा है यहाँ पर. अब जब भी पुट क्या करना है, x कोफिशिएंट क्या है, -1 है, वो d की प्लेस पर रखना है. x कोफिशिएंट को d की प्लेस पर रखना है, बस ये मेथड 1 का रूल है. yp is equals to, if you put it forward will get 1 by, डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, -1 होल स्क्वायर इज +1, ये माइनस Or प्लस plus 13, 13 13 प्लस 1 into 14, 14 में से 4 निकाल 10, 2 by 10 मतलब 1 by 5 आता ना. yes. ये हो गया आपका. यस. अब देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y is YC equal to, plus YP. ये कंपलसरी लिखना, थोड़े स्टूडेंट्स लास्ट में इसको नेग्लेक्ट करके नहीं लिखते, या आप लिखना जरूरी है. yc की वैल्यू यहाँ पर है, देखिए ये आप लिख लो, प्लस yp की वैल्यू ये है, यहाँ पर लिख लेना. ठीक है ना. आप कंपलसरी इसको लिखना, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप. अंडरस्टूड. Yes, sir. इसको नेग्लेक्ट करें तो मार्क्स आपके जाते. डोंट राइट, डोंट नेग्लेक्ट हियर प्लीज. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे जाके विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन नाउ. चलिए अभी है क्वेश्चन नंबर, यही कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन. सॉल्व d plus 2 into d minus 1 whole square into y is equal to e power -2x. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो अब इसका सोल्यूशन जब आप लिखेंगे, ऑपरेटर फॉर्म तो है ही, डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं. द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसा होगा बोलिए, d will be replaced with m plus 2 into, very good, m minus 1 whole square is equal to 0.
m प्लस टू इज इक्वल टू 0 मतलब m की वैल्यू -2 आ जाती। -2 यहाँ पर m के दो वैल्यूज आते, m इज इक्वल प्लस टू और 1 माइनस कॉमा 1 1 कॉमा 1 m माइनस वन होल ओके स्क्वायर कैन बी रिटन एज m माइनस वन इंटू m माइनस वन। सो देन अलग अलग करके लिख देंगे। जब आप yc लिखेंगे ना तो ये एक अलग है, इसका सोल्यूशन भी अलग लिख देंगे, c1 e पावर -2x। अब ये दो टर्म्स मिलके है तो c1 प्लस c2 ऑफ x लिखते हैं अपन, बट c1 यहाँ पर आ गया बल्कि c2 लिखना, c2 प्लस जितने आपके पास C3 सोल्यूशन है उतने वेरिएबल्स बनना है वहां पर। ओके ये हो गया आपका yc। अब देखिए आप yp कैसा करेंगे। दिस इज 1 बाई d प्लस टू इंटू d e माइनस minus वन 1 होल whole स्क्वायर, square d माइनस वन होल into स्क्वायर e power -2x e पावर -2x। बट जैसा ही मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, व्हाट वी हैव टू पुट हियर, इफ आई पुट minus d की प्लेस पे अगर मैं x कोफिशिएंट -2 रखा तो इमीडिएटली ये वाला टर्म जो है ना जीरो हो जाता। एंड प्लीज डोंट थिंक इन दैट वे, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, 1/0 इज इंफिनिटी, सो दिस ओवरऑल आंसर इज इंफिनिटी। ये इंफिनिटी फिर yc से मर्ज हो गया तो ये भी इंफिनिटी, ऐसा हो नहीं सकता। तो डोंट थिंक इन दैट वे। अब इसमें से यहाँ पर कितने टोटल फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स है, दो में से ये एक ही जी फैक्टर yes जीरो बन जा रहा -2 रखने से। इमीडिएटली उसका पावर क्या है वो देखना, पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये दूसरा जो फैक्टर है वो जीरो नहीं हो रहा, तो उसके अंदर डी की वैल्यू -2 रख देना आप। मतलब ये yp इज इक्वल टू, देखिए जरा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, 1 1 by बाई डी की वैल्यू अब इसमें -2 -2 रख दे रहा हूँ मैं, -2 -1 होल स्क्वायर। -1 whole square और जैसा ही ये जीरो होता है यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो ऐसा लिखना x पावर 1 बाई 1 बाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू ई पावर -2x आज इट इज। ये स्पेशल केस है, इसको केस ऑफ फेल्यूर बोलते हैं। अब लिखे तो भी चलता है एग्जाम में। yp is equal to -2 -1 is -3, 1 by -3 9 whole square is 9। So directly इसका आंसर x by x by 9 9 into e पावर -2x आता है। ठीक है ना, स्पेशल केस करे देखो अपन, इसको केस ऑफ फेल्यूर बोलते हैं अपन। अब उसके बाद द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp, ये आप लोगों ने लिख लेना, ठीक है। तो ये मेथड 1 में दो पॉसिबल केसेस होते हैं, एक तो है कि सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाता डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, दूसरा जो पॉसिबल केस है डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं आता, मतलब केस ऑफ फेल्यूर में चले जाता क्वेश्चन। वैसे केस में क्या करना, जो फैक्टर में वो फेल हो रहा, एक और क्वेश्चन करूं क्या इसके ऊपर, हाँ सर केस ऑफ फेलियर पे करिए ना ये देखिए इसमें क्या है मालूम, दो फैक्टर्स है, दोनों में से एक फैक्टर डी की वैल्यू -2 रखने से फेल हो रहा, कौन सा फेल हो रहा, ये d+2 वाला फेल हो रहा, तो उसका पावर क्या है, x पावर 1/1 1 अगर फैक्टर। सर उसका पावर 2 रहा तो अपन x उसके ऊपर पावर एक 2 क्वेश्चन करें, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल उसके ऊपर एक क्वेश्चन करो बोल रहे ना, करेंगे अभी। हाँ, ओके उसके ऊपर ओके एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन में मैं ये काम करता हूँ, डायरेक्टली वाईपी करके बताता हूँ, ठीक है। जी सर वाईसी तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आइडिया हो गया होगा अभी तक। तो सॉल्व d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड की जो वैल्यू है वो है 2e⁻³ तो आप एक काम कर रहे हैं अपन इसमें डायरेक्टली वाईपी कर रहे हैं, वाईसी नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं वाईपी करके बता देता हूँ। सर ये वाईपी को पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं ना पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, d² प्लस 6d पी आई बोल के भी लिखते हैं, वाई सी करना है मगर मैं नहीं बता रहा हूँ। वाई सी आप इसको कर सकते हैं ना, m² प्लस, ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ क्वेश्चन में एक बार कर लिए देखो आप, यहाँ पर करे देखो, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कर लिए उसको, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, अपने को पूरे मेथड्स को कवर करना है, इसीलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। नाउ लुक एट, ये 2 बाहर चले जाता आउटसाइड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी d स्क्वायर प्लस प्लस थ्री
d plus 3 हाँ होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल इंटू e स्क्वायर टू द पावर ऑफ -3x। तो अभी मैं रूल क्या बताया था आपको? x के कोएफिशिएंट को d की जगह रखना। पुट d इज इक्वल टू -3। अब जैसे ही हम्म यहाँ पे रखेंगे -3 + 3 विल बिकम 0। ये है आपका केस ऑफ फेलियर। यस स्पेशल केस। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, ये डिनोमिनेटर को 0 कर देते, तो ये स्पेशल केस बताना जरूरी था। 2 × 1/, जैसा ही ये केस ऑफ फेलियर हो रहा, पावर कितना है वो फैक्टर का 2 है ना, 2 है। सो देन 2 x x स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू e पावर -3x। 2 फैक्टोरियल 2 होता, ये दोनों 2 2 कैंसिल हो जाते, आपका आंसर आता x स्क्वायर e पावर -3। पावर -3 है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपको? yp की वैल्यू आ गई। yp इसके बाद आप जनरल सोल्यूशन, तो आपको लिखने का प्रोसीजर पता ही है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना। बट ये क्वेश्चन में मैं वाईसी नहीं करा, देखो ये यहाँ पर करे हुआ है, वो उसका वाईसी कर रहा है, देखो है ना। अभी आपको आई होप यू जी अंडरस्टैंड दी मेथड नंबर 1। अभी अपन मूविंग टू द यस मेथड नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। ओके, और एक दो क्वेश्चन इसके भी करेंगे। जी और एग्जाम में कभी कभी क्या कर रहा मालूम है, मेथड 1 2 3 के मिक्स क्वेश्चन अभी दे दे रहा, मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा देता उन्हें। मतलब 3 जी हो, एक ही क्वेश्चन में तीनों भी करने वाले भी रहते। तो अभी मेथड 2 करेंगे। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन मेथड 2 से। तो एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन सॉल्व, सिंपल लेंगे या टफ वाला लेंगे? एक काम करेंगे, सिंपल ही ले लेंगे। d² प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x ले लेंगे, राइट। साइन एक्स या cos x आता, देखिए मेथड 2 में राइट साइड में साइन एक्स या जी cos x, साइन 2x cos 2x भी आ सकता, साइन 3x cos 3x भी आ सकता। ओके, ए एक्स होता जनरल जी रूल, जनरल रूल में राइट साइड में ए एक्स बोल के आता। चलिए अभी सॉल्व करेंगे इसको अपन। साइन कॉस के प्रॉब्लम आते हैं मेथड 2 के अंदर। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू प्लस 0। 6 इक्वल टू 0। देखिए y और cos x को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन। इसके फैक्टर्स लिखने का रूल अभी मैं आपको बता दिया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं। 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको लेना है m कॉमन हियर, देन m प्लस 3 लेफ्ट ऑफ, प्लस 2 कॉमन हियर, 2 कॉमन m प्लस प्लस 3 3 लेफ्ट ऑफ अगेन is equal to 0. Now look at m plus 3 into m प्लस 2 m plus 2 is equal to 0. So how many values of m we are getting? We are getting two 2 values of वैल्यूज -3 comma -2. How to write yc? Can you tell me that? Yc is equal to different वाला case, c1 1 e power -3x plus c2 e power -2x. हो गया। अभी आप आज अपन देखेंगे yp इसका कैसा करते हैं, उसके बाद इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। सर यहाँ पे -3 -2 कौन सा भी लिख सकते पहले। हाँ वो आपका मर्जी, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। Now yp वाई पी इज इक्वल्स टू 1/d² प्लस 5d 5d प्लस 6 6 इंटू cos x, cos राइट। अब अकॉर्डिंग टू द yes रूल के हिसाब से, रूल देखिए क्या है,
नहीं, y का yp है ये। अब देखिए रूल देखिए, पुट, Put अभी तक अपन मेथड 1 में d की रिप्लेसमेंट को करें, अब यहाँ पर आपको d स्क्वायर को रिप्लेसमेंट करना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है, 1, cos कुछ भी नहीं है तो 1 रहता, दैट वी हैव टू राइट माइनस n स्क्वायर, दैट आंसर इज -1 ओनली। ये स्क्वायर ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये -1 होल स्क्वायर नहीं होता, माइनस एज इट इज रह के स्क्वायर सिर्फ 1 के ऊपर है, रियल के ऊपर स्क्वायर है, कॉम्प्लेक्स पे स्क्वायर नहीं है, रूल ऐसे से ऐसे ही लिखना है, okay. हर बार ऐसे लिखना है। 1/d स्क्वायर वैल्यू इज -1 हियर, प्लस Plus 5d 5d प्लस 6 plus 6 plus 6 cos इंटू 6. cos 6। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई वी गेट 5t plus 5d 5 प्लस 5, ठीक है, इंटू Into cos cos। x. अब चाहे तो इसमें से 5 को कॉमन भी ले सकते हैं ना ऐसा, हम्म 1 by s. ठीक है, 1 जब by तक d. डिनोमिनेटर में Sorry. d वाला टर्म है आपको हम्म सॉल्व करते रहना पड़ता, और डिनोमिनेटर को ने cos वाला सिर्फ सिर्फ d स्क्वायर को रिप्लेस करता, तो रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में d स्क्वायर वाला टर्म बनाना है, बना के रिप्लेस हम्म करना है, ठीक है ना, बना के रिप्लेस जी करना है, इंटू cos x, दिस इज इक्वल टू, लो लुक एट 1/5 एज इट इज। अब जरा डिनोमिनेटर को देखिए, ये d-1 न्यूमिनेटर तो एज इट इज चल रहा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म में है, वी राइट इट एज a a स्क्वायर square माइनस minus b square Minus b b square. स्क्वायर 1 होता cos x। अब फिर रिप्लेस करेंगे, क्या क्या रिप्लेस करेंगे, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 जैसे ही यहाँ पर Minus 1. रिप्लेस हो जाएगा, सो देन व्हाट विल बी द आंसर, 1/5, 1/5, 1 बाई, दिस इज d d स्क्वायर वाले minus 1 divided by -2 -2। अब ये देखिए डेरिवेटिव cos ऑफ cos x. x इज माइनस साइन x, d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव ना, हम्म 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस cos x ही आता। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दे सकते हैं, तो आपकी जो yp की जो वैल्यू आती ना, ये आती 1/5 2 10 इंटू साइन हम्म एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉमन लेके वो 2 के सामने का जो माइनस है उसको कैंसिल कर दिया, तो जी देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपको लिख particular लेना है, ठीक है। जी जी तो ये आपका मेथड 2 के ऊपर क्वेश्चंस थे, मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मेथड 2 के ऊपर, मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा मेथड 3 पे, इंशाल्लाह कल से आपको ऑनलाइन क्लास 11:30 या 11 10:30 ऐसा मैं मैसेज कर देता हूँ आपको बिफोर इच, मॉर्निंग आवर में ओके ही क्लास रहती, आफ्टरनून और शाम में तो नहीं ले, शाम में तो पता ही नहीं हो सकता, हॉलीडेज के टाइम Okay, पे sir. फिर भी देखेंगे। जी जी अभी तो आपको लैब में कुछ भी नहीं है ना फिलहाल, नहीं हो गया Yes. सर सब ठीक है, चलिए फिर एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करें इंशाल्लाह, फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश रहता, सेकंड मैथ्स ही रहता, ठीक है, एंड ऑफ द मीटिंग। ओके सर थैंक यू